Good morning, students. Today we are going to discuss about the introductions of engineering drawing. Now, in engineering drawing, there are many topics, but today we will discuss about engineering curves. In this, we will discuss about the conic sections. So, what are conic sections? Any curve produced by the intersection of a plane and a right circular cone. We can see few images here. The first image is that if we intersect a cone which is kept at right angle plane. If we cut this cone in a perpendicular manner, then it will give us a straight line. Similarly, if we cut this cone in horizontal way, we will get this as circle. Similarly, ellipse, parabola, and fifth one is hyperbola. So, what is eccentricity? The ratio of the distance of the point from the focus to vertex to the distance of vertex to directrix. This line is known as directrix. This known as directrix. This is vertex. This one is focus. Okay, and this distance VF divided by VC is given as eccentricity. VF divided by VC is known as the eccentricity. We have all studied in class 12th that the eccentricity for ellipse is less than 1, eccentricity for parabola is equals to 1, eccentricity for hyperbola is greater than 1. So there are to draw. First of all, we will take ellipse. There are three methods to draw ellipse. First one is concentric circle method. Second is oblong or rectangle method. Third one is eccentricity method. So in concentric circle method, there will be two. First of all, in ellipse, just see the image. This is directrix. This is axis. If we draw an ellipse like this AB is known as major axis, CD is known as minor axis. Okay. Now in this question, we have to draw the ellipse. Using concentric circle method. In this, we have got major axis, which is equals to 150 mm. Minor axis is given as 100 mm. Okay. Now, first of all, we will draw in a drawing sheet. We will draw one line, one straight line measuring 150 mm. Okay. The midpoint is, as the line is 150 mm, therefore the midline, the midpoint will be 75 75 mm. 75 mm this side, 75 mm this side. Now from the midpoint we will draw, as the minor axis is 100 mm. So from the midpoint we will draw 50 mm above the major axis and 50 mm below the major axis. Name it as C, D. Similarly, A and B. Okay. Now, for concentric circle method, we have to draw two circles. The first radius will be AO or OB. Similarly, we have to draw, putting the compass as center as O and taking the radius as OA. We will draw one circle. See, in this way, we will draw one circle. I am drawing it in freehand, so it may not look like a circle. Second, we have to take this part OC or OD. Then we have to draw another one circle in this way. Okay, we have got two circles. Now there are four halves.
These are the quadrants: first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Each quadrant we have to divide it, we have to bisect it in 30 degrees. Then we will get three divisions: first 30, 60, 90, 120 and 150. Now after this step, we will draw, we will join these points from the outer circle using this point, passing through the center and up to the last point. See, this way. Okay. Now similarly, this one, same in this section also, and this also. Now we have got all the divisions. Now the next step is that from the outer circles, the point which are joining the outer circles above major axis, we will draw a downward line like this. Similarly from this, just a moment. Whenever you are drawing the vertical lines, always take these 2 points. Then the line will become automatically, the line will become straight. Done. These 2 points. Similarly, these 2 points, downward, downwards, downwards, downwards. Okay. Now the inner circle, from the inner circle, uh, these points will go horizontally left side from the minor axis like this way. Here also you will take 2 points, this one and this one, and it will go horizontally right side. Similarly, these points. Done. Now we have got first point, we will name it as P1, this one as P2, this point as P3, this point as P4, this point as P5, this point as P6, this point as P7, this point as P8. Now we will draw the ellipse using French curve or you can use free hand. जिनकी ड्राइंग अच्छी है वो फ्री हैंड्स भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करें. वी सजेस्ट एज अ टीचर दैट यू शुड यूज फ्रेंच कर्व. आपको फ्रेंच कर्व से इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे परफेक्ट एलिप्स आपका ड्रॉ होगा. देखिए ये 3 पॉइंट मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूं यूजिंग माइनर एक्सिस P4, ठीक है. ये मेरा एलिप्स ड्रॉ हो गया. ये मेरा एलिप्स हो गया. क्वेश्चन में एक और चीज बोला गया है, ड्रॉ टैंजेंट एंड नॉर्मल. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉ टैंजेंट एंड नॉर्मल. इस केस में क्या करेंगे, एलिप्स में जैसा हम लोग जानते हैं, एलिप्स में देयर आर 2 फोकस. ठीक है, एलिप्स में फोकस F1, F2. वर्टेक्स से F1 का डिस्टेंस जितना होगा, सिमिलरली वर्टेक्स से F2 का भी डिस्टेंस उतना ही होगा. ठीक है. नाउ as we have got these inner circle already, so we can take this point as F1, this point as F2. Okay, take any random point. Suppose here I am joining these points F1 and F2. This point as, name it as Q. Got it?
Now, in 12th we have studied how to bisect the angle. Take any length. Put the compass here. Mark this side and this side. Cut two arcs. Similarly, with the same length. Put the compass here. Cut here. Similarly, put the compass this point and cut it here, and you will get a line joining this. This is your normal N1 and N2. Now, normal is there. How to draw tangent? Using a compass, using a protractor. Put the protractor at point Q and mark mark 90. Mark 0 and 180 degree. You will get your tangent T1 and T2. Okay. Now at last, as I mentioned here, you can see after drawing this, you have to you have to show the major axis, that it is 150. Similarly, minor axis is 100. Last, you have to write it down. Point A, P1, P2, C, P3, P4, B, P5, P6, D, P7, P8 is an ellipse. You can also write it down that N1 and N2 is normal, T1 and T2 is tangent. Understood? समझ में आया? हम लोग नेक्स्ट मेथड में जाएंगे. नेक्स्ट मेथड वही है, बस मैंने थोड़ा सा स्टेप्स लिखने की कोशिश किया है. ड्रॉ ए मेजर एक्सिस ऑफ 150 mm. जैसे मैंने समझा दिया, स्टेप्स का जरूरत नहीं पड़ेगा. सेकंड मेथड है oblong method. Draw an ellipse using oblong method or rectangle method. Similarly, in this question also, ellipse will have major axis is equals to 150 mm और minor axis. मतलब ये दो डेटा दिया हुआ रहेगा हमारा. मेजर एक्सिस कितना, माइनर एक्सिस दिया हुआ है. यूजिंग oblong method. इसमें भी आ सकता है ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल. सेम मेथड होगा इसमें भी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम लोग ए बी मेंशन कर रहे हैं. ठीक है. मिड पॉइंट लेंगे हम लोग O. मिड पॉइंट O से सेम प्रोसेस हम यहां भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे. माइनर एक्सिस दैट विल C एंड D. अब AB जो हमारा मेजर एक्सिस है, इसके हॉरिजॉन्टली मतलब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगा. ऊपर भी हमारा, नीचे भी. सेम जो हमारा माइनर एक्सिस है, पैरेलल एक लाइन इधर ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम इधर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, हुआ. अब देखो, अब जैसे क्या है, ये मेरा एक रेक्टेंगल शेप में आ गया. ओके. अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा बॉक्स आया है पहला, ये एक लाइन मेजर एक्सिस का एक लाइन पकड़ लो और एक हाफ हम पकड़ लेंगे माइनर एक्सिस का. ठीक है. इसमें क्या होता है कि डिविजन्स करते हैं हम लोग. इस लाइंस को डिवीजन करेंगे, इसका भी डिवीजन करेंगे हम लोग. तो डिवीजन जो होगा, मैक्सिमम 5, मिनिमम 3. अब डिवीजन कैसा है, जैसे कि ये मेरा मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है,
150, दैट मींस ये मेरा क्या हो गया 75। अगर हम इसको 3 डिवीजन करते हैं तो 75 का 3 डिवीजन 25 करके होगा, दैट इज इजी। तो हम लोग डायरेक्ट स्केल से 25 मेजर करके हम लोग 2 पॉइंट ले सकते हैं। बट दिस ये जो लेंथ है मेरा, ये मेरा 50 mm है। 50 mm का लेंथ को हम लोग 3 डिवीजन नहीं कर सकते हैं, 3 डिवीजन। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग करते हैं लाइन डिवीजन मेथड। ये आप लोग सबको पता होगा लाइन डिवीजन मेथड। इससे हमें इसका 3 डिवीजन करना है। तो हम यहाँ पे एक लाइन, कोई भी एंगल 45 डिग्री से कम, 25 से ज्यादा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी लाइन में ये आप पहला लेंथ लिया हमने 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का 3 पार्ट आ गया मेरा। ये जो लास्ट पॉइंट है इससे हम इसको ज्वाइन करेंगे, सेम पैरेलली हम फॉरवर्ड करेंगे ये स्केल को, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो मेरा 3 डिवीजन आ गया। और यहाँ पे 25 पे 25 पे हो गया 3 डिविजन्स। तो हम लोग इसको करेंगे ये एज इट इज O है, ये इसको 1, इसको 2, सिमिलरली ये 1 डैश, ये 2 डैश, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप्स क्या है, हम लोग 1 डैश से C को ज्वाइन करते हैं, 2 डैश से भी C को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, D से 1 को क्रॉस करते पास करते हुए अप टू 1 डैश तक जाएंगे, 1 डैश के लाइन तक जाएंगे, ये लाइन, ये 2 से क्रॉस करते हुए अप टू 2 डैश तक जाएंगे, 2 डैश के लाइन तक आ गया। तो हमें ये दो पॉइंट मिला। इसका और भी मेथड है, सेम यही स्टेप्स को हम लोग यहां भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। एक और पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, पॉइंट्स को ट्रांसफर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे कि इस पॉइंट को हम लोग को नेक्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, इस लाइन के पैरेलल, ये जो लाइन है हमारी, ये मान लो A डैश, ये B डैश है, A डैश B डैश, दिस इज A डबल डैश, दिस इज B डबल डैश, ओके। ये जो लाइन है A डैश B डैश, इससे इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट को भी हम लोग इस पॉइंट से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कंपास लेंगे, कंपास लेके हम लोग सेंटर वाले लाइन से माइनर एक्सिस से इस पॉइंट को मेजर करेंगे, यहां रख के एक आर्क यहां ड्रॉ करेंगे, यहां सेम ये इसको, इस पॉइंट को मेजर करेंगे, इस लेंथ को मेजर करके सेंटर पर रख के यहां पे आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, 4 पॉइंट्स मिल गए टोटल। फिर सेम प्रोसेस से इस पॉइंट को B डैश और B डबल डैश के पैरेलल हम लोग नीचे ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है। सेम ये पॉइंट भी नीचे आएगा हमारा, आ गया। सेम प्रोसेस, इस लेंथ को मेजर करेंगे, यहां रख के एक आर्क यहां ड्रॉ करेंगे, इस लेंथ को मेजर करेंगे, सेंटर से रख के यहां पे एक मेजर होगा, ठीक है। हमें टोटल 6 पॉइंट्स मिल गए। सेम आप A डबल डैश B डबल डैश के पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल, ये हुआ। अब इसके पैरेलल जाएगा ये यहां तक, ठीक है। सेम प्रोसेस अगेन, ये मेजर लेंथ को मेजर करना है, यहाँ पे आर्क काटना है, ये लेंथ को मेजर करनी है, यहाँ काटनी है। हमें एलिप्स का सारा पॉइंट्स मिल गया। अब हम लोग इसमें एलिप्स ड्रॉ करेंगे, देखिए फ्रेंच कर्व यूज करेंगे या फ्री हैंड, देखिए ड्रॉ हो गया। इसमें मैंने नहीं लिखा है कि ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेम प्रोसेस होगा। जैसे हमारा पॉइंट है यहाँ पे 25 पे हमने एक कट किया था, इसको हम लोग एज इट इज, इसको हम लोग एज इट इज F1 ले सकते हैं। यहां से भी 25 मेजर कर लेंगे, यहां भी मेजर कर लेंगे F2, ठीक है। कोई भी एक रैंडम पॉइंट यहां से मान लो ये एंगल बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट सेम प्रोसेस से, और ये मेरा टेंजेंट ड्रॉ होगा एज इट इज, सॉरी ये मेरा नॉर्मल ड्रॉ हो गया N1
एंड N2। इस पॉइंट को हमने Q दिया, P2, P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8। ठीक है, ये पॉइंट हमारा Q है। हम Q पॉइंट पे रखेंगे प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ पे 0 और 180 को मेजर मार्क करेंगे, जैसे टचिंग द एलिप्स। ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो गया। सेम वे में हम लोग लास्ट में दिखा सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं A, P1, P2, C, P3, P4, B, P5, P6, D, P7, P8 is an ellipse। लास्ट में हम लोग दिखा देंगे, ये मेरा मेजर एक्सिस है, 150 लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया हुआ है, सेम 100, ये ठीक है, हो गया। ये हमारा हमने दो मेथड हमने किया अभी तक। पहला मेथड है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, सेकंड वन है ऑब्लॉन्ग स्लैश रेक्टेंगल मेथड। क्वेश्चंस में ऐसे आ सकते हैं, कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू दिस, माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू दैट। ये नहीं लिखा हुआ रहेगा कि यूजिंग व्हिच मेथड, जस्ट आपको दिया हुआ रहेगा व्हिचएवर इज इजी यू कैन डू इट। ये मैंने स्टेप्स दिया हुआ है सेम। नाउ थर्ड वन इज इसेंट्रिसिटी मेथड। थर्ड वन इज इसेंट्रिसिटी मेथड। इसमें क्वेश्चन में चेंज रहेगा, ड्रॉ एन एलिप्स when a distance of its focus from डायरेक्ट्रिक्स is 50 mm and eccentricity is 2/3। ये चीज दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और ये डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm या मान के चलो 60 mm दिया हुआ है, ठीक है, हमें नहीं पता वो। तो एज इसेंट्रिसिटी क्या हमने पढ़ा था, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू VF by VC, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। तो हमारा क्या हुआ, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है हमारा 2/3 है दिया हुआ, विच इज लेस देन 1। तो ये एलिप्स है, इससे पता चल रहा है हमारा। नाउ हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट C, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा V, ये हमारा F, ये पॉइंट। अब जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मैंने 50 लिया हुआ है, ठीक है, बट ये क्या है, क्वेश्चन में क्या है, मान लो अगर 60 दिया हुआ है, सपोज 60 दिया हुआ है, 50 है तो इजीली डिवाइड हो गया, यहाँ से 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इट इज इजीली 1 सेंटीमीटर का मैंने 5 डिवीजन लिया, ये 2 और ये 3, 50 पे हो गया। इफ अगर ये 60 दिया हुआ है, हम लोग फिर वही मेथड करेंगे, 60 इन केस अगर 60 दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन डिवीजन मेथड। यहाँ पे देखो 2/3 दिया हुआ इसेंट्रिसिटी, हम इसका सम कर लेंगे, इसका सम क्या होगा 5, 2 + 3 = 5। तो हम यहाँ पे 5 डिवीजन करेंगे, 5 इक्वल डिवीजन, 1 2 3 4 5 हो गया। अब हम लोग फोकस से ज्वाइन करेंगे लास्ट, ये 1 2 3, ये पैरेलली ज्वाइन होगा, ये आपके डिवीजन आ गए। उस केस में अगर ये 60 दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन, उस केस में V मेरा यहां पे आएगा, ये पॉइंट। एज मेरा ये 50 था तो मेरा V थोड़ा सा शिफ्ट टिल्ट कर रहा है, बट इफ मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इन केस अगर क्वेश्चन में आपका 60 दिया हुआ है, देन आपको क्या करना है, ठीक है। तो हम अभी 50 लेके ही बता रहे हैं, ओके। तो ये हमारा F है, दिस पॉइंट इज V, ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमने यहाँ मेजर किया है, हमने यहाँ पे 5 इक्वल डिवीजन में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। तो VF
इसेंट्रिसिटी इज गिवन एज VF बाई VC, ये मेरा दिया हुआ है 2/3, दैट मीन्स VF का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 एंड BC का दिया हुआ है 3। देखिए एक 2 डिवीजन और यहाँ 3 डिवीजन है, हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप क्या है, VF को मेजर करते हैं हम लोग। VF को मेजर करने के बाद एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 डिवीजन है 2 सेंटीमीटर का। हम यहाँ पे एक लाइन, सिमिलर लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन हमने ड्रॉ की है, ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होकर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बुक्स में आपको इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स लेने बोला जाएगा, 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर करके आप डिविजन्स को ले लो। पहला डिविजन आपका हो गया, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मैंने लिया हुआ है यहाँ पे पहला डिवीजन रैंडमली लिया हुआ है, आप रैंडमली भी ले सकते हो एट अ डिस्टेंस। पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, चौथा, पांचवा, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 9 10 11 12। ओके, नाउ क्या है कि हम लोग इसके बाद का स्टेप क्या है, वी विल मेजर, नेम इट एज 1 1 dash, 2 2 dash, 3 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash, 5 6, this is 7 7 dash, 8 dash, this is 8 9, similarly measure 1 1 dash, okay, measure 1 1 dash, join these line, हमको 1 1 dash को ज्वाइन करना है, जितना ऊपर मेरा है उतना मेरा नीचे भी जाएगा, ये सिमिलर इस लाइन से आपको ज्वाइन कर लेना है पहले, ठीक है। जितना ऊपर जा रहा है मेरा, जितना ये लेंथ है अप्रोक्सीमेटली उतना मुझे नीचे भी ड्रॉ करना है। हम लोग सारे लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हम 1 1 dash को मेजर करेंगे, ठीक है। मेजरिंग लेंथ मेरा है 1 1 dash, हम फोकस पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर। सेम 2 2 dash को मेजर करेंगे, 2 2 dash को मेजर करना है, फोकस पे रखना है सेंटर और एक आर्क यहां ड्रॉ होगा। सेम सिमिलरली 3 3 dash को मेजर करना है, फोकस पे रखना है, एक आर्क यहां ड्रॉ होगा। ऐसे करते करते हमारा सारा 4 4 dash को मेजर करना है, सेंटर फोकस होगा, आर्क यहां ड्रॉ होगा। 5 5 dash पे फोकस पे रख के ये आर्क, तब तक ये करना है जब तक जो मेजरिंग लाइन है मेरा, सपोज हमने इस लाइन को मेजर किया है 9 9 dash को, 9 9 dash को हमने मेजर किया, 9 9 dash को हमने मेजर किया, फोकस पे रखा और हमारा जो कंपास है इस लाइन को कट ही नहीं कर पाया, ये मेरा आर्क यहीं तक आया, दिस सपोज, इट विल बी द लास्ट पॉइंट। समझ में आया, हमने इस लाइन को किया तो ये हमें चेक कर लेना है कि कहां तक ये जा रहा है। 9 9 dash को हमने मेजर किया, हम फोकस पे रखेंगे और हम आर्क काटने की कोशिश कर रहे हैं, आर्क कटा यहाँ पे, दैट मीन्स ये हमारा आगे जरूरत नहीं है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये हमारा लास्ट वर्टेक्स पॉइंट है। अब ये क्योंकि ये वर्टेक्स है मेरा, तो हम यहां से एलिप्स ड्रॉ करेंगे। देखिए 1 मिनट, फ्रेंच कर्व या फ्री हैंड, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ये मेरा एलिप्स ड्रॉ हो गया, आप लोग नेमिंग एस कर दीजिए, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15, लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं पूरा सर्कल करके इज एन एलिप्स, ठीक है। क्वेश्चन एक यहां आ सकता है, ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम वर्टेक्स, द डिस्टेंस इज 70 mm। सपोज ये बोल रहा है कि एक टेंजेंट और एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, डायरेक्ट्रिक्स से मेरा डिस्टेंस होना चाहिए 70 mm। सपोज ये मेरा यहाँ मेजर कर रहा हूँ, मेरा 70 यहाँ आ रहा है,
डायरेक्ट ट्रिक से। मतलब ये जो लेंथ है मेरा, दिस लेंथ इज 70। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें ये पॉइंट ही लेना है, दैट इज क्यू। सेम देखिए यहाँ पे फोकस दिया हुआ है, यहाँ पे वर्टेक्स से फोकस, सेम ये वर्टेक्स से फोकस लेंथ को हम लोग यहाँ मेजर करेंगे, यहाँ रख के यहाँ भी फोकस ड्रॉ कर लेंगे, विच इज फोकस 2 फोकस 1। सेम प्रोसेस है ये ठीक है। इन दोनों एंगल को हम लोग बाइसेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने कॉन्सेंट्रिक और ऑब्लॉन्ग मेथड में किया था। ये हमारा N1 N2 हो गया। सेम प्रोसेस, ये पॉइंट रख के यहाँ पे 0 180 मेजर करके यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। T1 T2 ओके, कंप्लीट। सेम प्रोसेस है हमारा एसेंट्रिसिटी मेथड, ये इलिप्स के लिए था, ये इलिप्स के लिए था। सेम प्रोसेस हम पैराबोला और हाइपरबोला में भी करेंगे। नाउ दिस इज पैराबोला एसेंट्रिसिटी मेथड। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पैराबोला डिस्टेंस एंड फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 एंड एसेंट्रिसिटी बिकॉज़ एसेंट्रिसिटी पैराबोला का 1 होता है। यहाँ कुछ नहीं भी दिया तो चलेगा, एट कोई भी डिस्टेंस, मान लीजिए 50 दिया हुआ है, ये अगर 75 भी दिया हुआ है तब भी चलेगा। हम यहाँ से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, एक एक्सिस। मान लो 75 दिया हुआ है, 75 मेजर करेंगे, उसका हाफ ले लेंगे, क्योंकि एसेंट्रिसिटी जो है हमारा वो सेंटर पे होगा पैराबोला, क्योंकि एसेंट्रिसिटी पैराबोला के केस में 1 होता है। तो हम 50 ही लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा पॉइंट F है, ये पॉइंट B है। सेम प्रोसेस, ये VF को मेजर करना है, VF ड्रॉ करना, एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ करना है B पे और यहां से क्रॉस करना है। हम रैंडम पॉइंट्स, मैंने ज्यादा पॉइंट नहीं लिया, 1 2 3, आप 4 ले सकते हैं, 4 पॉइंट ले सकते हैं। सेम प्रोसेस, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम पॉइंट से। देखिए मैं यहां भी ले सकता हूं, ये रैंडम है, ये हो गया 4, ये हो गया 5 डैश, ये हो गया 4 डैश, ठीक है। मेजर करेंगे 1 डैश को, सेंटर होगा मेरा F, और हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ 2 डैश को मेजर किया, सेंटर F, यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क। 3 डैश को मेजर करेंगे, सेंटर F, फिर यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क। 4 डैश को मेजर करेंगे, यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क। 5 डैश को मेजर करेंगे, यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क। अब पॉइंट्स मिल गया हमें, अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमें मिल गया। अब इस क्वेश्चन में अगर आ सकता है सेम, अगर इसमें भी बोला जाता है आपको कि ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लें। कौन से कलर से, येलो से। एक रैंडम पॉइंट हमने ये लिया, ये पॉइंट F, सॉरी Q, ठीक है। Q पॉइंट से F को हमने ज्वाइन कर लिया। इस लाइन के रिस्पेक्ट पे हमें 90 ड्रॉ करना है इस पे, तो ये 90 मान लो यहां पे आ रहा है मेरा 90, दिस एंगल इज 90, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट से ये जो पॉइंट आया, इसको हमने T1 दिया, यहां से ये Q पॉइंट को क्रॉस करते हुए ये जाएगा T2, दिस इज टेंजेंट। अब पॉइंट Q पे हम रखेंगे और ये लाइन के रिस्पेक्ट पे हम कंपास अपना प्रोटेक्टर को रखेंगे, 90 पे मेजर करेंगे। 90 मेजर करने के बाद दिस इज नॉर्मल 1 एंड नॉर्मल 2 हो गया। सेम देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा मेंशन किया हुआ है, लास्ट में आपको ये लिखना पड़ता है। जैसे ये पॉइंट P1 P2 P3 P4 P5, ये P6 P7 P8 P9 P10, तो एज इट इज आप लिख दो P3 P2 P1 V, मैंने ऐसे उल्टा आया हुआ है, P5 P4 P3 P2 P1 V
P6, P7, P8, P9, P10 इज अ पैराबोला। आप जितने आप पॉइंट्स लेंगे आपको वैसे मेंशन करना पड़ता है, तब ड्राइंग कंप्लीट होगा। समझ में आया? नाउ ये स्टेप्स है, ये बुक का स्टेप्स है, आप लोग देख सकते हैं। एंडी बर्ट एक अच्छी बुक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी मेथड, इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें पहले क्या करते हैं हम लोग, कि एक डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है हमारा, एक एक्सिस ले लिया हमने, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ, फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस दिया हुआ 50 mm। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये सी हो गया हमारा, और यहां से एक डिस्टेंस ले लेंगे फोकस 50। एज इसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला इसमें दिया हुआ नहीं है, बट इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ले लेते हैं दैट इज ग्रेटर देन 1। तो क्योंकि एलिप्स में दिया हुआ था हमारा 2/3, तो हम उसी को ही लेते हैं। 3/2 दिया हुआ है हमारा, विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 डिवीजन कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डिवीजन कर लिया। अब हमारा वर्टेक्स कहां पे आएगा, ये जो 3/2 दिया हुआ ये क्या है मेरा, VF बाई VC। ठीक है, थर्ड डिवीजन पे आएगा हमारा वर्टेक्स, और 2 डिवीजन पे ये। देखिए, तो सेम हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये VF को, और एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, और फिर C से ये क्रॉस करते हैं सीधा। फिर अब रैंडम, यहाँ 2 पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको आप कंसीडर कर लो, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। जितना ऊपर हम ड्रॉ करेंगे उतना अप्रोक्सीमेटली नीचे भी जाएंगे। ठीक है, देखिए सेम प्रोसेस है, ये 1 डैश हो गया, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। 1 डैश को मेजर करेंगे, सेंटर हमारा फोकस होगा, और एक आर्क यहाँ पे कटेगा। सेम प्रोसेस यहाँ कटेगा। 2 डैश को मेजर करेंगे, सेंटर ये यहाँ पे कटेगा। ठीक है, 3 डैश को मेजर करेंगे, ये तो ये हमारा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये हाथ से मैंने ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा है, बट एक्चुअल फिगर ये ऐसे देखिए, ये इस शेप में कर्व बनता है। इट विल गो ऑन। ठीक है, सेम इसमें भी वही है मेरा प्रोसेस, टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करने का। कोई भी एक रैंडम पॉइंट लो, रैंडम पॉइंट को फोकस पे ज्वाइन करना है, फोकस से 90 लेना है, सपोज ये यहाँ आ रहा है, फिर ये पॉइंट एज इट इज पैरेलल ड्रॉ, टेंजेंट चला जाएगा ये पॉइंट, इसको हम लोग T1 T2 मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमने Q लिया हुआ है, सपोज इस पॉइंट से इस T1 T2 के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज नॉर्मल N1 N2। समझ में आया? कोनिक सेक्शन में हम यहीं तक पढ़ रहे हैं आज। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन करने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट ये है। ओके, थैंक यू।